Okay, friends, I'm going to begin. We are well on time, and a very, very good evening to all of you. A very, very warm welcome to take out time and to be with me again today for yet another session of Sharp Conversations. So, friends, those who don't know me, my name is Dipali Nerula, and I'm a self-growth coach and a coach who also has expertise in relationships. And in fact, आज के टाइम में इस दौर में जब लोग काफ़ी परेशान हैं, they are going through their stresses and their tensions and anxieties. Whoever is feeling troubled is welcome to get in touch with me on my Facebook Messenger, and I will try my best to help you out. Of course, the cases have to be genuine. ये नहीं कि कोई भी उठ के phone कर दे या अपना message डाल दे. I will, be more than happy to help people who would be, genuinely suffering or feeling troubled in these times. So, friends, to bring these sessions of sharp conversation is a matter of great satisfaction to me personally because of being a coach. Because I personally feel that the testaments of successful and influential people, when they come directly from them, are the greatest learnings of life. And to get to know from them about their self-beliefs, their personal development, their life goals, their power of ideas, their successes, their failures, their challenges, what kind of actions they take, and so much more. You see, when it comes from them, you get to understand how they have followed all these things to accomplish all that they have achieved in their lives. And that makes for a great understanding, and it becomes very inspiring and motivating for others to understand what were those things in their lives that they followed to reach where they have reached with the enormous success. And, it also gives us, when they speak about their lives, it gives us an understanding of practical advice. We get to understand the tactics of how they have really gone around doing things. And when it becomes their own narrative, it is certainly very, very welcoming. So while we sit in the comfortable environment of our homes these days, it gives me an opportunity to bring you some wonderful testimonies of these achievers from different walks of life. And so I'm going to now, without taking too long, get in touch with my guest for the evening, Varun Badola, and bring him on, and then take forward some very interesting conversation with him. Yeah? So I will just get him on line with us in a minute. Hey Hello. Varun, how are you, my dear? Warm welcome. I'm doing well. How are you doing? Very, very well, Varun. So good to see you, my dear. Can I just request you to put your phone, the screen in a way, because ऊपर से थोड़ा कट रहा है. So if you can just fix it. Is this Yeah, better? that's better. Yeah, better, Okay. better, Great. better. Yes. So, I'm tell me. so happy to have you with me on my platform of Sharp Conversations today, Varun. And Pleasure's all mine. also very thankful to you क्योंकि जब मैंने तुमसे बात करी तुमने मुझसे कुछ सवाल जवाब ज़्यादा किए नहीं, and you बिल्कुल फटाफट in a jiffy you agreed to come on the show with me, and and you said, Dipali, the sooner the better. So I was extremely delighted at the way you agreed to come on board with me. So thank you very much, my dear. क्या करूं दीपाली, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. Your voice is. Yeah, seriously, can you hear me, or is there a problem? Your voice is still not coming. Okay, let me. Can you hear me now? I think so. And if you put your phone a little closer to your, to you, I think it would be better. Can you hear me now? It could be better.
Okay. तुम्हारी आवाज में तो दम है, और अगर आवाज नहीं सुनाई देगी तो फिर मजा नहीं आएगा. अभी आ रही है आवाज? बहुत हल्की. इज योर अभी भी वॉल्यूम हल्की आ ओके? रही है? हाँ? अभी भी हल्की आ रही है. अभी आ रही है? I don't know what is the reason, but the sound is a little low from your end, I think. It's strange because Now it's better. Now it's better. मेरे तरफ से भी थोड़ी कम थी. It's better. Yeah, yeah. okay. Wait, let me work this out then because Yes. Okay. Your frame Are we needs good to be now? fixed. Yes, I think so. Yeah. Tell me. Great. So, coming back to my conversation, I want to go back to the viewers and tell them that what does one say about you really? You are somebody who I have greatly admired for your incredible talent and your craft, Varun, and you know it. And of course, also because you are so forthcoming and so humble and well-meaning. So, over the years, one has got to know you as a person who's brilliant as a professional, but also more so a very good human being. And of course, besides being an actor, I think you are really an entertainer. You know, I think the term entertainer suits you very, very well because besides acting, which is your prime, you are also a writer, you're also a singer, you're a photographer. I also researched and found out you do a lot of शायरी. मतलब क्या क्या नहीं करते तुम. So it will be lovely to घर know. चलाने के लिए, खुद को बिजी रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है दीपाली. नहीं, पर तुम बहुत बाखूबी तरीके से निभाते हो, which is what is very, very nice. कि you wear so many hats and you're able to. And then how could I forget that you're a part of the Celebrity Cricket League as well. So so it is difficult to really pinpoint कि तुम क्या क्या करते हो और क्या क्या नहीं करते हो. So I think वो तुम्हारी जुबानी भी सुनेंगे. We'll get to understand what all you do. But I also want to tell the viewers that how we met. It was friends. It was very interesting that my older son Akash Narula was selected to do a television serial, and it was being directed by Tigmanshu Dhulia, and Varun was the assistant director for that. And that serial was about 4 young boys who run away from school. And the story revolved around those 4 young boys, and Varun was deputed to handle those 4 boys in terms of training them. And as a mother of Akash, I used to go there very diligently, I remember, and sit there and watch what Varun was doing with the children. And I have to say, my God, when I saw Varun handling those children, in the whole process, I also noticed how talented Varun was. So I remember telling myself, and I think I told you as well, that there is going to be a day when people are going to look up to you and you're going to be a huge success. Yeah. I was 24 years old myself, that? actually. Sorry? That was a long, long, long time back. तब कौवे सफेद हुआ करते थे, Britishers हिंदुस्तान में थे. As I said, I was 24 myself at that time. Yes, I but know. it was a great experience, and especially because दिल्ली में shooting करने का मौका मिला. Then we went to Gajraula to shoot. Yes. वहाँ पर हालांकि I don't think Akash shot there, but Gajraula से just पहले एक बहुत बड़ी हवेली में जहाँ पर कि even you were a part of that show, if you remember. I तो remember. हमने खानदान में किसी को नहीं छोड़ा, जो सेट पे आया घर से हमने सबसे एक्टिंग करवाई. And but yeah, it was a great experience doing that show. Great experience. I remember कि suddenly you said, Dipali, tum bhi chalo, you also get ready and you will be also acting in it. So while the children were doing, you also made me act, and it was quite a wonderful experience. In fact, I'm going to call Akash in a minute, in a second, to just say hi to you, because he's no more that 8-9-year-old bacha. He's now a big guy. So that's Akash for you. Hello, good evening, sir. How are you doing? I'm good, thanks. How are you? Huh? This is a lockdown look. अच्छा, this is the lockdown look. Lockdown look. ऐसे ही चल रहा है. मतलब मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन में जब कहीं से कोई भी चेक आने के आसार ना हो ना, तो फिर अपने सारे के सारे खर्चे किसी भी तरह से कम कर लो, चाहे वो ब्लेड का हो या कैची का हो. बिल्कुल. How are you doing? Great.
I'm good, thanks. How are you? Great to see you after 20 years. It's been 2 decades. 22 years to be very precise. Yes, yes. So I'm very excited. I was excited when Mom told me she's coming online live with you. I said, wow, my first serial was with you, and now my first live Insta live is also with you, so which is awesome. करेगा लड़का लाइफ में कुछ करेगा पक्का. All the best. I'll see the rest of you guys on my Instagram. Sure. All the best. Take care. Bye bye. So, Varun, since you are, so much fond of Shero Shairi, and you've known Ghalib since your school days, and at the back of your hands, and apparently also you know a lot about a lot of other shayars. So I'm going to say 2 lines for you. तो मैं तुम्हारे लिए 2 लाइनें तुम्हारी नजर करती हूँ कि 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिलते रहेंगे जो खिलने वाले हैं. So that's for you. Yeah. कि जिन्होंने खिलना है तुम्हारी तरह वो खिल के ही रहेंगे. Come what may in life, challenges कुछ भी आते रहे, तुम अपने रास्ते अपने जरिए बनाते रहते हो. So, and now because we are going to start our conversation, गुफ्तगू शुरू करेंगे जवाब की, सवालों की. तो अब मुझे शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि बिना तुम्हारे कुछ गुनगुनाए, कुछ गाए या कुछ रिसाइट किए, जो तुम्हारा दिल करे, कुछ छोटा सा या तो गुनगुना दो या कुछ शेरो शायरी का कुछ एक वो झलक दे दो. Whatever is convenient and what is suitable. हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे. सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं. ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं. लवली, बहुत खूब. जैसे जैसे चलते जाएंगे मैं बीच बीच में रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम कुछ गुनगुनाते रहो, तो सोच लेना प्लीज कि क्या गाना है और क्या गुनगुनाना है. ठीक है, पेन पेपर लेके बैठा हुआ हूँ कि क्या क्या गा सकता हूँ. How nice. So Varun, I'm going to take you back to your early years of life. I know that you led most of your life in Delhi, and you were in Green Park. In fact, ironically, it's very close to where I live in Delhi. And knowing about your schooling from Sardar Patel in your college, and then most importantly, getting to know about your father, who's Mr. Vishwa Mohan Badola. He was a known journalist, and he also went on to become a tremendous actor. And in fact, no. ये उल्टा था. My father ruled the Delhi stage during the 60s and the 70s, and acting was always his first love. He was basically an actor who went into journalism. So, obviously he became popular in the later years of his life when he started doing films and all, but he was huge on Delhi stage. In fact, अपने समय में, और ये मैं खुद बता सकता हूँ क्योंकि I have almost seen all his work जो अपने मेरे पैदा होने के बाद जो उन्होंने किया था, especially opera जितने भी उन्होंने किए थे. There wasn't a better actor singer on Delhi stage. Yes, Mr. Badola has had a great name. और आज भी वरुण जब हम उनको स्क्रीन पे देखते हैं, he recently did some advertisement or something he did with Pakistan being the on the other side. कुछ उन्होंने एक it was really nice. So to God bless him with great health, because to see him even now and to see that spirit and enthusiasm is absolutely fantastic. And then of course you've had your mother who's always been supportive of you. You have a sister who's an actor.
You have another sister who's an RJ, and then you married Rajeshwari. So beautiful and so talented. So I think the whole circle really got complete. I have great choice. Yeah, sure. So, anything in particular that you want to talk about your early days of life in terms of your schooling, your college, and then how you took the decision to go to Mumbai? Was acting your organic choice because you were passionate about acting, या फिर तुम्हें ये लगा कि कुछ और नहीं आता करना तो चलिए एक्टिंग ही कर लें, या फिर वो एक इंटरव्यू? अच्छा, फिर एक और भी चीज मैंने पढ़ी कि कहीं पे ये भी था कि नसरुद्दीन शाह जी की कोई इंटरव्यू थी जो तुम्हें बहुत भाई, और फिर उससे भी तुम्हारा शायद दिमाग बना कि अब तो बॉम्बे जाना ही है. So, ये एक्चुअली हुआ था ऐसा क्योंकि बहुत साल, मतलब मैंने कोई स्कूल में कोई झंडे नहीं गाड़े, और मेरे बहुत सारे टीचर्स तो शायद रिटायर हो गए मुझे पढ़ाने की कोशिश करने के बाद. सो कॉलेज भी ऐसे ही निकला, और उसके बाद मुझे ये तो पता था कि मुझे लाइफ में क्या नहीं करना है, क्या करना है, बस इसी सवाल को लेके जरा थोड़ी कंफ्यूजन चल रही थी जिंदगी में. और थोड़ा बहुत थिएटर वेटर करना शुरू किया. फ्रैंकली मुझे एक बार पहले बीच में लगता था कि मैं एडिटिंग वगैरह कुछ कर लूं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जो है मैं जा सकता था क्योंकि वही एक चीज मुझे समझ में आती थी. तो फ्रैंकली मुझे कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि स्कूल में मुझे किसी प्ले के लिए सेलेक्ट कर लिया गया और मुझे पता हो कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं. मैंने जस्ट, क्योंकि फादर प्ले करते ही करते थे, बहन भी जो है वो नाटक करती थी, उस समय वो NSD रेपेट्री में सेलेक्ट हो गई थी, स्कूल में नहीं रेपेट्री में एज अ गेस्ट आर्टिस्ट, एंड अच्छे खासे प्लेस कर रही थी. तो जब सभी कर रहे थे तो मुझे लगा मैं भी कर लेता हूं. तो अरुण कुकरेजा जी के साथ मैंने एक प्ले किया, और प्ले का नाम था उसने कहा था. उसमें मेरे पास 3 लाइनें थी बोलने के लिए, और स्टेज प्रेजेंस बड़ा लंबा था, और उसमें एक्टिंग जो है मुझे करनी होती थी पानी पीने की, और सर्दी लग रही है, और ये सारी की सारी. और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का बहुत ही सेलिब्रेटेड प्ले है उसने कहा था. तो वो मैंने किया. उसके बाद फिर एक्ट 1 ज्वाइन किया, जहां पर एक प्ले वहां पर भी किया. उसके बाद राजेंद्र नाथ जी के साथ, अब राजेंद्र नाथ जी के साथ मेरे पिताजी बहुत साल पहले काम कर ही चुके थे, और अभियान ग्रुप में जितने लोग उस समय काम कर रहे थे वो एक्चुअली काम इसलिए करते थे क्योंकि साल में एक बार सब दोस्तों को मिलना होता था. तो एक नाटक लिया जाता था और वो तैयार करके कि यार मिलना जुलना भी हो जाएगा, रिहर्सल करेंगे, उसके बाद नाटक तैयार हो जाएगा 1 महीने में, तो फिर एक शो भी कर लेंगे 10-12 जितने होते हैं. राजेंद्र नाथ जी एक इनफैक्ट प्ले था अली बाबा 40 चोर. अली बाबा जो है वो 1970s में, इनफैक्ट 74 में मेरे फादर ने किया था, जिस साल में पैदा हुआ था, और वो दूरदर्शन के लिए जो है वो टेलीवाइज हो रहा था. और उसकी रिहर्सल्स में जो है मैं अपने फादर को लेके जाता था. तो मैंने उसमें गाना वाना, एक दिन मैंने उनको बोला कि आप मुझसे गवाना चाहेंगे, तो उन्होंने मेरे पिताजी को देखा, बोला अच्छा कुछ गा के सुनाओ. तो मैंने अपने फादर का एक गाना गा दिया. तो उन्होंने उसके बाद मुझे अपने इस प्ले में कास्ट किया, जिसका नाम था किस्सा हकीम साहब का. मनोज मित्रा का प्ले था, और इसलिए क्योंकि उसमें जो हकीम साहब एक फकीर है जिससे प्ले शुरू होता है, वो उनको कोई गाने वाला चाहिए. वो प्ले किया, और उस प्ले को करने के बाद चूंकि मेरी बहन अपनी शादी के बाद ऑलरेडी आ चुकी थी बॉम्बे, एंड उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया था. तो मुझे जो है इस गलतफहमी ने घेर लिया कि मैं एक्टर बहुत अच्छा हूं. और उसमें नसीर भाई का बहुत बड़ा हाथ इसलिए है कि एक बैग पाइपर सितारों का कारवां करके एक शो आता था. उसमें 3 एपिसोड थे, जिसमें नसीर भाई ने जो है अपने पूरी जिंदगी की मतलब दास्तान सुनाई थी, और उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आपको डर नहीं लगा अगर आप एक्टर ना बने तो क्या होगा. एंड ही सेड कि नहीं, मेरे भाई ने 15 साल की उम्र में ये तय किया कि उसको आर्मी ज्वाइन करनी है. कोई
लड़का वही 15-16 की उम्र में तय करता है कि उसको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, एंड देन everybody starts working towards their goal. So at the same age, I decided that I wanted to become an actor, and I started working towards it. And frankly speaking, I never thought that I'll fail, and especially because मैंने वो ऑप्शन ही नहीं दिया अपने आप को। तो मुझे ये बात समझ में आई कि हाँ, अगर कूदोगे नहीं तो तब तक तैरना तो खैर कहाँ से सीखोगे। तो मैंने अनाउंस कर दिया कि भैया मैं बंबई जा रहा हूँ, और मेरे घर वालों ने सही बताऊं तो कुछ कोई किसी भी तरीके की परेशानी भी नहीं थी किसी को। शायद उनको लगा होगा कुछ तो करनी है, चल बंबई चला जाए यार, मतलब वहीं पे शायद कुछ कर ले। But yeah, then it so happened that I came to Bombay, and I started off as a costume coordinator. Before we start with that journey, मैं तुम्हें interject करूंगी. There are a lot of people who are joining us, शोभना है, सूर्या है, रश्मि है, सीमा है, संजय गोविंद है, सबको बहुत, my coach friend Preeta, Priyanshi, lot of the people are here on the forum, so warm welcome to them. My sister is mentioning, she's online with us, her name is Rashmi, she used to be Rashmi. She was with me in Kissa Hakeem Kaka. I don't know if you know. उन्हीं के चक्कर में तो प्ले हुआ था वो। Really? My God. She's my older sister. She's the character. हालांकि जब वो प्ले लिखा गया था तो जाहिर है उस समय जो है लेप्रोसी को जो है वो छुआछूत की बीमारी माना जाता था, हालांकि उसमें भी ड्राई और वेट होता है मामला। And I remember she played the dancer. So सुचित्रा गुप्ता जी जो है वो माँ बनी थी उनकी। और वहां तो सबसे कमाल चीज ये थी कि उस नाटक में जितने थे लोग वो सारे के सारे या तो पिताजी के दोस्त थे, और मतलब सुचित्रा गुप्ता से लेके और सुभाष जी और ये सब के सब। और रोज इनका एक काम होता था, मुझे बैठा के ना, ये देख ये अपने बाप की तरह ये ऐसे ऐसे करता है, अपने बाप की तरह करता है, ये देख इसका ना ये वाला मूवमेंट बिल्कुल अपने बाप की तरह है। अरे मतलब इतना कॉन्शियस कर देते थे। एक दिन मैंने गलती से कहीं पे नुक्ता नहीं लगाया किसी एक शब्द में, और हो सकती है ऐसी गलती, मतलब अपना कौन सा तलफ्फुज़ कोई बहुत अच्छा था। तो सुचित्रा गुप्ता जी जो है, हम लोग शंकर मार्केट में एक फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम था जहां पर रिहर्सल करते थे। वो रूम से उधर से चलती हुई आई सामने, क्या वर्ड बोला तूने? तो मैंने बताया ये वर्ड। बोलते इसमें नुक्ता होता है। मैंने कहा अच्छा ओके थैंक यू। बोलते तुझे बता रही हूँ, कोई दूसरा होता ना तो मैं चल के आती भी नहीं इतनी दूर। मैंने कहा नहीं आप ना निसंकोच, जब आपको लगे कि ऐसी कोई परेशानी है आप चल के बिल्कुल आ जाना। 2 दिन के बाद तुम्हारा शुरू से, from the very beginning, you have been lucky to be surrounded by the veterans of the field of theatre and films and so much more in your life. But when you were going to Bombay, तब आपके पिता ने आपको वो क्या words of wisdom दिए, which is very important, for I'm sure any newcomer any child who is willing to go to a city like Bombay with stars in their eyes for acting, जिस तरह से तुम इतने साल पहले गए, बच्चे रोज वहां पर पहुंचते हैं. What was that word of, what were those words of wisdom that your father gave you when you left Delhi for Mumbai? Frankly, my father did not say much to me. Now, I have had a very, people might find it strange, but that's the kind of relationship that I have with my father. हम लोग साथ में बैठते हैं, दोनों अपनी एक एक ड्रिंक बनाते हैं और दुनिया जहान की बातें करते हैं. We don't talk about life. और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ बैठते हैं. Now he isn't somebody जो कि बहुत ज्यादा ज्ञान बांटने वाले मोड में. No, he doesn't say much. The only thing that I remember that he told me was कि अगर दिल और दिमाग के बीच में कभी भी कोई confusion हो तो हमेशा दिल की सुनना, दिमाग की नहीं. That was the only thing that he told me. एक चीज और थी.
कि जाने का जो टिकट का पैसा है मैं दूंगा, वापसी आने का नहीं. इज दैट करेक्ट? शो में बोला था, उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला. But I remember reading it somewhere कि जो तुम कि मैं he जाने said का that in a पैसा दूंगा. show, and उसके ऊपर से see the thing is कि एक तो ये भी छोटी बात नहीं होती है कि आप अपने लड़के को जो है छोड़ दें, दुनिया के हवाले कर दें, and you know let him find his own feet, जो कि मुझे obviously वो मौका मिला करने के लिए. And उसके बाद one thing that I have always found pretty interesting is कि जब मुझे लगा कि अच्छा now I need to speak to my father, उनको हमेशा पहले से पता होता था कि मुझे किस बारे में बात करनी है, without my saying a single word. ये चीज मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो कैसे मैनेज कर पाए इतने सालों तक, कि मतलब मैं जाऊं उनके पास कि अच्छा इस बारे में बात करनी है, तो बिफोर आई कुड स्टार्ट स्पीकिंग ही वुड स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दिस. और हाँ, एंड एक वो कभी कभी जो एक होती है ना एम्बैरेसमेंट कि यार मैं कैसे बात करूं, क्या करूं, वहां तक बात पहुंचनी नहीं थी, खुद ही वो मुद्दा शुरू करके खत्म कर देते थे. एंड हाँ, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता था, ओके नाउ गेट द ग्लासेस, टेक द ड्रिंक आउट, गेट द बॉटल. So tell me, when you reached Bombay, how was your journey? I know your sister was already there; she had a production house, etc., and you joined her as a costume design coordinator. But did you really face your own share of challenges in Mumbai when you reached there? And तुम्हें भी क्या, जैसे हम अभी भी सुनते हैं, उस जमाने में भी था कि ऑडिशंस पे बुलाया जाता था. You had to go and knock the doors of various people for a role, and कभी मिले नहीं मिले उसकी कोई गारंटी नहीं. So किस तरह के challenges तुमने खुद फेस किए वरुण, and how were you able to overcome them? मेरे चैलेंजेस जरा थोड़े अलग तरह के थे. मैं ऑडिशंस पे जाता ही नहीं था. मैं जब आया यहाँ पर, मेरे चैलेंजेस बहुत अलग तरह के थे. मेरे चैलेंजेस फिजिकल उतने ज्यादा नहीं थे जितने साइकोलॉजिकल थे. और उन चैलेंजेस से पार पाना, अब वो हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा तफसील से बात नहीं की जा सकती, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि वो चैलेंजेस ऐसे थे कि वो किसी भी एक तंदुरुस्त दिमाग वाले आदमी को जो है डीरेल कर दें बुरी तरीके से. एंड साइकोलॉजिकल ज्यादा था, फिजिकल उतना ज्यादा नहीं था. और लेकिन आई हैड एक्चुअली रीच्ड अ पॉइंट इन माय इनिशियल डेज इन बॉम्बे जहां पर मैं रात भर सोने की कोशिश करता था लेकिन अपने आप से बात करता रहता था. I could not sleep for a single second, and this continued for 3 years. So you can well imagine कि वर्क, अच्छा जरूरी नहीं है कि आपको काम नहीं हो तो परेशानी होती. कभी कभी काम हो और वो मनमाफिक काम ना हो, या फिर उसमें अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानियां पेश आ रही हैं तो वो भी बहुत बड़ा एक स्ट्रगल हो जाता है. एंड मतलब ये कभी भी नोटिस करना कि काम ना होने की वजह से जितने लोग जो है अपने आप को फांसी लगाते हैं, काम में ट्रीटमेंट सही ना होने की वजह से उससे ज्यादा लोग फांसी लगाते हैं खुद को. लेकिन ये था कि आपको ना सर्वाइव करना सीखना पड़ता है. और चूंकि वो चीज मैंने स्कूल टाइम से अपने क्लासमेट्स के हाथों जो है मैं झेल चुका था. एंड ये मैं बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं बिकॉज नॉट दैट आई एम पॉन्टिफिकेटिंग एनीबॉडी, आई एम नॉट, बट साइकोलॉजिकली यू नो एट टाइम्स व्हाटएवर यू गो थ्रू, आपको या तो आप उसको जो है एक नींव का पत्थर बना लें अपनी जिंदगी में, या फिर यू सकम टू योर प्रॉब्लम्स. बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपको मालूम है कि आप जो है एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है. अच्छा होना ना होना तो अलग बात है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है. तो जाहिर है कि आपके क्लासमेट्स जो है वो आपकी रिपोर्ट कार्ड लेके आपके जो है पूरी मार्कशीट ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं. एंड किड्स व्हेन दे गेट नास्टी, दे नो नो लिमिट.
करेक्ट। अब बच्चे होते हैं सारे के सारे, मतलब हम लोगों ने भी किया होगा, कुछ एक लोगों को के साथ जो मैंने बचपन में किया है, मैं आज तक शर्मिंदा होता हूँ सोच के। सो करेक्ट। यही सारी की सारी चीजें, और चलते चलते जब बंबई पहुंचा वहां पे भी जो कुछ हुआ वो अलग बात है, लेकिन आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है। मेंटली अगर आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं रखेंगे, करेक्ट। फिजिकल प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको चोट लग गई, कुछ हो गया, आपके पास 3 दिन तक खाने के लिए नहीं था, खाना आप फिर भी मांग के खा सकते हो, आप खाने के लिए लड़ सकते हो, लेकिन अगर आपका दिमाग आपके साथ खेलना शुरू कर दे, आपका खुद का दिमाग, सबसे बड़ी बैटल जो है वो आप दूसरे से नहीं अपने आप से लड़ते हो। अगर अपने आप से आप हारना शुरू कर दो तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। सो यहीं आप पे खुद मैं भी नहीं, कहना क्योंकि चाहूँ, आप अपने आप से ही हार रहे हो। करेक्ट, So, क्योंकि ये जो दिमागी जो इंसान जब तंग होता है, परेशान होता है, डिप्रेस्ड होता है, एंग्शियस होता है, फियरफुल होता है, ये सारे साइकोलॉजिकल चीजें ही आपको एकदम, लाइक यू राइटली सेड, दे कैन रियली क्रश यू, तो अपने आप को तुमने कैसे बाखूबी तरीके से बांध के रखा? What were those beliefs that you were able to then gradually inculcate for yourself to be able to hold on your battle in Mumbai and get over these sort of self-limiting beliefs? Because in this industry, it is very easy to get depressed and anxious for multiple reasons. So what were those, aspects that you started to believe in for yourself to be able to hold yourself and not let yourself get stuck in situations? So, सही बताऊं, जब ये सारी चीजें हो रही होती तो आपके दिमाग में ऐसी कोई बात आती भी नहीं है कि मतलब मेरा बिलीफ और ये और वो। इट्स जस्ट अबाउट दैट वन डे दैट यू हैव टू स्पेंड, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू कीप ऑन टेलिंग योरसेल्फ दैट अपना टाइम आएगा। आप एक एक दिन निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये सब कुछ जब चल रहा था तो उस समय आई हैड ऑल्सो बिकम एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एंड इनिशियली तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऊपर वाली की दया से इतना बुरा था जिसकी कहने की हद नहीं थी, बिकॉज मुझे असिस्टेंट नहीं बनना था, मुझे एक्टर बनना था, और एक्टिंग शुरू करने का कोई तरीका नजर आ नहीं रहा था। वो इसलिए क्योंकि अपनी बहन के प्रोडक्शन हाउस में ही मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था पहले तो। अच्छा, वहां से थोड़ा एक फायदा ये हुआ कि तिग्मांशु धूलिया के साथ जब वो बाहर कहीं और काम करने के लिए जाते थे तो मुझे मौका मिलता था उनको असिस्ट करने का। और ये मेरे ख्याल से जिस साल दिल से बन रही थी एंड तेशु भाई वाज बिजी राइटिंग दिल से, तो हम लोगों का एक पूरा शेड्यूल जो है उसकी स्क्रिप्ट मुझे और तेशु भाई को लिखनी थी, एंड ही लेफ्ट विदाउट राइटिंग द एपिसोड्स। और मुझे आई वाज 22 एट दैट टाइम, 22 23 इन फैक्ट, एंड आई हैड टू राइट द कंप्लीट शेड्यूल, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि होगा कैसे। बट देन तेशु भाई की वाइफ ने बोला कि नहीं, वो मेरी बात हुई थी सुबह जाने से पहले, एंड ही सेड कि नहीं, वरुण विल राइट इट, एंड आई जस्ट थॉट दैट समबडी एल्स हैज सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू, बट आपको जो है ना इंटरेस्ट है उस तरफ, और आप ये मान के चल रहे हैं कि नहीं आपके बस का है नहीं है काम। वो शायद आखिरी दिन था। उसके बाद it was a complete 180-degree turn for me. I became a brilliant assistant आज और कल में। ये कभी कभी कुछ एक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपके कान में पड़ती हैं, मतलब आपको किसी ने कुछ दिया नहीं, सिर्फ एक वो वर्ड कि नहीं, he has the confidence in you, और I changed as an assistant. So I आपकी became फिर a brilliant assistant after that. करेक्ट। सो yeah. उसके बाद फिर आपकी जर्नी कैसे आगे बढ़ी? Who were the people who were able to handhold you or maybe mentored you and helped you for your way forward? क्योंकि फिर जब आपका टेलीविजन के साथ कारवां शुरू हुआ तो फिर वो इस कदर चला कि वो बढ़ता ही चला गया. You have a huge body of work that you have to your credit. So who were those people who helped you in your initial years of career? हेल्प तो उस हर इंसान ने की है जो कहीं ना कहीं मुझे अब मेरी जिंदगी में छू के गया है. सो मेरा इनिशियल समय जो है बंबई में कैसा था मैं बताऊं.
आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और आप चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हो चुके हैं एक आदमी के जिसका नाम है तिग्मांशु धूलिया। ठीक है, ये पहला नाम। और आपका काम है उस आदमी के घर जाकर उसको सुबह उठा के बाथरूम में धक्का मारना कि भाई शूटिंग है, तैयार हो जाओ, से लेके आप बेस्ट सेलर बना रहे हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, तो या तो वो बैठा हुआ अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा है बेस्ट सेलर की, आपको डायलॉग्स करने हैं उसके, या फिर आप दूसरा बेस्ट सेलर लिख रहे हैं, एक ऊपर बैठा हुआ अपनी कुर्सी पे वो लिख रहा है, नीचे आप दूसरा अपना बेस्ट सेलर लिख रहे हैं, और राइटिंग का काम दिन भर आपका चल रहा है। उसके बाद शाम होती है। शाम होती है तो एक तिग्मांशु धूलिया का दोस्त घर पे आता है, जिनके साथ बैठकर आप अपनी दिन भर जो आपने लिखा है उस पर डिस्कशन करते हैं, और उससे पहले आप नीचे पार्किंग में जाके क्रिकेट खेलते हैं। और उस एक्टर का नाम है इरफान खान। ओके। अच्छा, उसके बाद आप मतलब क्रिकेट खेल के और फिर शाम को ओवर ड्रिंक्स आप डिस्कशंस करते हैं कि अच्छा आज दिन भर में क्या लिखा क्या नहीं लिखा। अब बात है इरफान भाई और मैं, हम दोनों के दोनों 7 जनवरी की पैदाइश थे। फिर कभी कभार जो है यारों दोस्तों के साथ जो है बैठक लगाने का मन करता है, तो एक संजय मिश्रा नाम के एक्टर आ जाते हैं, वो साथ में बैठे होते हैं। फिर साथ में पीयूष भाई भी आ जाते हैं कभी कभी। और तो ये कंपनी ये है आपके पास कि आपको एक्टिंग के बारे में बात करनी है, राइटिंग के बारे में बात करनी है, तो आप इन लोगों से बात कर लें। और अगर मतलब कभी कभी इसमें जो है सौरभ शुक्ला भी इन्वॉल्व होंगे कि चलो आज मतलब मजमा 15-20 लोगों का है तो उसमें वो भी आके बैठे हुए हैं। आपको बताऊं कि सबसे पहला मैंने एक ऑडिशन दिया था बनेगी अपनी बात के लिए, और 3 लोगों ने दिया था, और मेरी कॉन्फर्मेशन उस शो में करवाने में बहुत बड़ा हाथ था इरफान भाई का। उन्होंने जो है प्रोड्यूसर जो टोनी सिंह है उसको कहा था यार लड़का अच्छा है, ट्राई करके देखो इसे। सो उसके बाद देखो किस्मत भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, वो होना था मेरे साथ, तो इसलिए जो है वो मतलब दरवाजे अपने आप खुलते रहे। हाँ, लेकिन अपने आप को संभाल के रखना जो है वो बहुत एक बड़ा खेल होता है, क्योंकि मुझे इतना तो याद है कि टेलीविजन में जब मैंने काम शुरू किया या जब भी मैं ऑडिशंस के लिए जितना भी जाता था, मैंने कभी ये नहीं किया कि एक ऑडिशन का आपको कॉल आया है और दूसरा दोस्तों का कॉल आया है कि यार चलो जैम सेशन है कहीं पे, तो आप जैम सेशन के लिए निकल गए। आई नेवर डिड दैट इन माय लाइफ, नेवर एवर डिड दैट। इनफैक्ट पार्टिंग या फिर बोलिंग एलेज में जाना, ये सब कुछ मैंने तब शुरू किया जब मैं अपना दूसरा या तीसरा शो कर रहा था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिड नॉट नो व्हाट द नाइट लाइफ वाज, and because I was 22 when I went to Bombay, or rather I came to Bombay, and I did not want to leave anything to chance. So I actually kept away from all the distractions for the longest time. कि जब मेरे साथ के लड़के जो है वो पार्टी मना रहे होते थे, तो उस समय मैं बैठा हुआ बतौर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर एंड एन एडिशनल डायलॉग राइटर। एट दैट एज आई यूज्ड टू बी वर्किंग विद तिग्मांशु धूलिया। So I think वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं तो So ये मानकर चला जाए वरुण, that besides of course your good luck, you of course were also very very committed, very focused, and also you had just the right kind of people around you, surrounding you, to be able to take you on your journey of many projects that came your way. So आपके जो कुछ बहुत ही बेहतरीन सीरियल्स रहे, जैसे कोशिश एक आशा रही, जिस देश में निकला होगा चांद, एक चाबी है पड़ोस में, अस्तित्व एक प्रेम कहानी, मतलब बहुत से आपने बहुत रोल्स निभाए हैं बखूबी तरीके से। मुझे ये बताइए, एंड ऑफ कोर्स आजकल जो लेटेस्ट आपका चल रहा है मेरे डैड की दुल्हन, it is being really watched by people, and
very, very popular. People are loving that serial of yours. And so tell me that, what are those criteria of you to choose work? Because I know you're the type of person who will not just pick up anything. What are normally your criteria of picking up work? You have picked up very unconventional kind of work. And also, which performance or performances of yours that you remember where you have actually patted your back and said, you're happy with what you have done? So उल्टे से शुरू करते हैं. Which performance of mine? Well, I was happy doing कोशिश एक आशा, but अस्तित्व and then एक चाबी है पड़ोस में, ये दो परफॉर्मेंसेस ऐसी थी जो कि करने में बहुत मजा आया. मेरे डैड की दुल्हन अगेन इज अ ब्रिलियंट शो. आई एंजॉय डूइंग दैट शो टू. एंड एंड उसके बाद यार एक्चुअली काम तो काफी किया है मैंने. मतलब नाउ याद ही नहीं आ रहा. देखिए इतना काम किया है कि याद ही नहीं आ रहा. नहीं, लेकिन देखो क्राइटेरिया जो है ना वो चेंज होता रहता है. और एक समय ऐसा था जबकि बैंक बैलेंस डिसाइड करता है कभी कभी कि आप क्या शो करेंगे क्या शो नहीं करेंगे. लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि मुझे ना कोई काम अगर बोले करने के लिए अच्छा ये फला शो है तो मुझे सबसे पहले लगता है मना कैसे करूं. बिकॉज मुझे काम करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है. I'm a very reluctant actor. I am a very, very reluctant actor. क्योंकि मुश्किल ये है कि आप एक जैसे अभी ये शो जो है मेरे डैड की दुल्हन, अब लोगों के लिए तो अच्छा है यार, उस खड़ूस सा कैरेक्टर है ये वो फला धमाका, बट द थिंग इज कि उस कैरेक्टर को पूरा बनाने में, उसको एग्जीक्यूट करने में जान निकलती है. और मतलब I'm given to understand that the show is doing well and लोग देख रहे हैं and it's a pretty successful show. लेकिन बहुत 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 मेहनत लगती है किसी भी शो को सक्सेसफुल बनाने में. इतनी मेहनत कौन करेगा यार. तो वो मेहनत तो आप करते आ रहे हो. You have been doing a lot of hard work for sure. I know, but in between you had also become. I remember talking to you during those times when you were saying that you're kind of taking it easy, you're trying to see, you're being choosy and, wanted to do some very weighty and meaty kind of work. And I know about you also being like that you will not just pick up anything that comes your way. And, I also discovered कि तुम्हें television industry का आमिर खान बोला जाता है. Why so? Talk about that. अच्छा, मुझे नहीं पता कि क्यों बोला जाता है. वो मैंने कभी कहा भी नहीं. वो किसी ने अपने मन से वो चीज लिखी है. बिकॉज किसी और ने ही कहा है. किसी और ने ही कहा है. Not yours. I just read that some people call you the Amir Khan of the television industry. And I wonder why. There are no similarities between the two of us. Is it maybe because how you like to work in terms of your inputs to the director, or maybe get into dialogues with the director, not just about do anything that comes your way. You like to interact and discuss and then perform. Has it got anything to do with that? I at times completely fail to understand that why don't all the actors do this. और ये एक मैं बात बताऊं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इसकी वजह से आपको काम नहीं भी मिलता है. करेक्ट. कि मतलब मुझे तो बहुत बार लोगों ने जो है सीधा सीधा ये कहीं बाहर से पता चला है, या फिर बहुत लोग बोल देते हैं यार नहीं वो इंटरफेयरिंग बहुत है, कि सवाल बहुत पूछता है. अरे यार तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें एक कैरेक्टर बनाना है. एंड इवन एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग बोस्टफुल, आई विल जस्ट पुट वन पॉइंट अक्रॉस. अभी जो तुमने नाम लिए हैं दीपाली, इतने सारे, कोशिश एक आशा हो गया, देश में निकला होगा चांद हो गया, फिर सुबह होगी एक और शो था बीच में, एक चाबी है, and मेरे अंगने में, that was I was not the lead in that, but then that was a very very good show. and बीच में और कई चीजें हैं, शोज जो कि उतने नहीं चले लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी थी. या इवन मेरे डैड की दुल्हन, सक्सेस रेट तो बुरा नहीं है,
तो जाहिर है कि मतलब अगर आप कोशिश एक आशा में लोग बोलते रहे यार वो डिमेंटेड कैरेक्टर अगले ने किया था क्या कमा था, कुछ तो सोच के किया होगा ना. ऑब्वियसली बिना सवाल पूछे आप जब तक इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करेंगे अपने काम के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में, आप उसको रियल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो कभी भी रियल दिखेगा नहीं. सो ये भी जो मेरे राज की दुल्हन में मतलब शो जब शुरू हुआ था, शुरू होने से पहले कुछ एक जो है माइलस्टोन्स थे, जैसे कि यहाँ पर जो है अब वो उसकी जो है उसका एटीट्यूड अंबर शर्मा का चेंज होगा टुवर्ड्स दिस वुमन बिकॉज कहानी यहाँ तक पहुंच चुकी होगी. उसके बाद मेरी फिजिकलिटी में क्या चेंज आएगा, मेरी वॉइस में क्या चेंज आएगा, ये सारी की सारी चीजें शुरू होने से पहले मैंने ऑलरेडी डिसाइड करके रखी हुई थी. यू नो दिस इज व्हाई एक्टिंग और एक्सीडेंट में फर्क होता है. हम लोगों के यहाँ मुश्किल ये है कि बहुत समय हम लोग एक्टिंग को एक्सीडेंट और भगवान भरोसे छोड़ देते हैं. वो एक बार कभी वर्क कर जाए कि भैया आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन वो हर बार वर्क नहीं कर सकती. यू हैव टू हैव अ सर्टेन प्लान. And a lot of people have a problem when you want to approach your work with that kind of dedication. Because हाँ कई बार तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग वो सोच कर नहीं आते हैं कुछ भी, वो आ जाते हैं बस. So tell me something, your journey from television also moved in the direction of feature films. How was that journey, and what have your experiences been with the film industry so far? Well, इतना तो मैंने काम किया नहीं है. हाँ ये जरूर है कि जितनी भी फिल्में आई हैं उसमें मेंशन जरूर मिल जाता है परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन उसके आगे कुछ होता नहीं है. तो फ्रैंकली मुझे नहीं पता कि वो फिल्म्स की दुनिया में, वो फिल्मों में कैसे ब्रेक इन किया जाता है या क्या है. लाइक कुछ समय पहले मैंने मिकी वारिस की थी, और परफॉर्मेंस जो है उसकी शूटिंग के दौरान मुलाकात भी हुई थी हम लोगों की. इनफैक्ट यू नो एवरीबॉडी रेव्ड अबाउट द परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग. फिर 7 Hours to Go में पीपल रेव्ड अबाउट द परफॉर्मेंस सब, लेकिन पता नहीं क्या है उसके बाद आगे ज्यादा कुछ होता नहीं है. बट या अगेन मेरे लिए मेरा काम है, तो मैं तो उसको वैसे ही अप्रोच करूंगा जैसे कि मैं टेलीविजन के कैरेक्टर्स को अप्रोच करता हूँ. फॉर मी मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं है. So as an actor, of course, for an actor, acting on any platform is good, you know, whether it is television, whether it is stage, whether it is cinema. But personally, which is the platform that you really enjoy performing on? I mean, which is the platform that makes you feel happy when you perform? I mean, is it on stage? Is it on, you know, for television serials or even films, even if it means only a few of them? Which is the medium which excites you the most? Acting excites me, frankly. Nothing more. Just pure acting excites me. वो कहीं पर भी हो, चाहे वो स्टेज पे हो, चाहे वो टेलीविजन पे हो या फिल्म्स में हो. मेरी प्रेफरेंसेस ऐसी कोई नहीं है कि अच्छा मैं फिल्म में ज्यादा एक्टिंग करूंगा, टेलीविजन में कम करूंगा. नहीं, अगर एक कैरेक्टर मुझे पसंद है तो फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा. एंड इट रियली डजंट मैटर कि मैं वो स्टेज पे कर रहा हूँ या टेलीविजन सेट पे या फिल्म सेट पे. डजंट मैटर. Somebody wants to know about your relationship with Rajeshwari. How did you meet her? So I met her for the first time on the sets of Antakshari. She was the host. और हालांकि उसके बाद फिर हम लोगों की मुलाकात कभी 6 महीने में, 1 साल में एक बार होती थी. So it was not love at first sight. It was only after we did this one film together for Sahara that was called Phir Se, and we shot for some 10 odd days together, and then we decided that okay, we are going to get married. लेकिन वो पहली मीटिंग के कुछ 4 साल बाद था. Wonderful. And she is really lovely. So you must tell her that, you know, she's you know, also a terrific actor, and we are extremely fond of her also in terms of her craft and her ability to sing beautifully. Now tell me, Varun, from acting you have got into writing and direction also you have done at various levels. What is the next big news coming your way in terms of either acting or direction or what?
सो एक्टिंग और डायरेक्शन वगैरह का तो पता नहीं अभी। खैर कुछ एक सीरीज, एक अपहरण नाम का वेब शो है जो मैंने 2018 में रिलीज हुआ था, वो लिखा था मैंने। दूसरा एक और है जो अभी कहाँ पे रिलीज होने वाला है ये मुझे नहीं पता, बट ऑलमोस्ट रिलीज पे है। आई एम वर्किंग ऑन वन एट द मोमेंट। अपहरण का सेकंड सीजन जो है वो भी लिख तो दिया है हम लोगों ने, बट वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इट दिस टाइम राउंड, सो somebody else is some other production house is going to make it. तो तीन चार चीजें हैं जो कि ऑलरेडी पाइपलाइन में है, लेकिन जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता तब तक किसी भी चीज के बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल है नहीं। So how are you foreseeing this situation? I mean, how hopeful have you been so far, and how are you seeing the situation unfolding, particularly with your area of work? क्या आप लोगों को समझ आ रहा है कि क्या होगा? I mean, how hopeful are you pertaining to the post-lockdown period? frankly speaking, entertainment would be the last thing on their minds, मतलब of the powers that be. So ये मानना कि हाँ हम लोगों की इंडस्ट्री कल से जो है पैर पे खड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। पहले बाकी सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, पहले उन सबको जो है कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से चलाया जाए। एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन उतना जरूरी नहीं है जितने कि बाकी सारे सेक्टर्स हैं। तो हम लोगों को डेफिनेटली, एंड प्लस एक जो बहुत बड़ी परेशानी है कि हम लोगों की इंडस्ट्री बेस्ड ही ह्यूमन इंटरेक्शन पे है। करेक्ट। मतलब और कुछ नहीं है तो 100 की यूनिट लगती है कम से कम एक शूट पे, और उसके ऊपर से अगर एक्टर्स हैं तो शादी का सीक्वेंस होगा तो सब गले भी मिलेंगे, उसके बाद सारी की सारी चीजें होंगी, तो मतलब वो जमावड़ा पूरा का पूरा रहता है, प्रॉक्सिमिटी होगी ही होगी। सो कोई कितना भी कह ले कि नहीं वो हम लोग SOP सारे के सारे हम लोग जो है उनका ध्यान रखें, कहाँ से रख पाओगे आप? कुछ भी करके भैया, अगर रेड जोन में आपके वर्कर्स रहते हैं तो वहां से शूटिंग करने आएंगे, दोबारा वापस रेड जोन में ही जाएंगे। हाँ, वन हैज टू रिमेम्बर कि आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी काम नहीं कर रहा है। वो जब तक काम नहीं करता आपकी शूटिंग शुरू नहीं हो सकती, बिकॉज 90% ऑफ योर यूनिट ट्रेवल्स बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो अभी तो बहुत टाइम है, अभी ये इतनी इजीली of course तुमसे बातें करते करते समय का तो पता ही नहीं चल रहा है, but tell me something, कि given the circumstances, also you already have a crop of the newcomers who are a part of the industry who are struggling. अगर हम ये मान के चलें कि हाँ माहौल थोड़ा ठीक भी हो जाता है, फिर भी what would be your advice to the the children or the youngsters who aspire to be a part of the industry? Given the circumstances, of course, things are looking very, very different at the moment. But having said that, what are those attributes that you would like to talk about quickly, that when the youngsters come to Mumbai to be a part of the industry, whether it is television or films, how should they be, what are those things that they should be keeping in mind so that they're able to go along, fight the struggles and challenges and not feel depressed or fearful or anxious and lose sight of their goals in life? One word that I can, well, even if I were to give a piece of advice, balance. Balance is one thing that you need to maintain. बहुत सिंपल सी चीज है। एक जैसे गालिब का शेर है कि गालिब बुरा ना मान कर वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहे जिसे। बहुत खूब। बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपको दिल ट्राई एंड पुल यू डाउन। बहुत सारे लोग होंगे जो कि 36 तरह की बातें आपको कहेंगे। हर चीज सीरियसली नहीं लेनी होती, कान खुले रखो, क्योंकि कई बार हम लोग गलती ये भी करते हैं कि कोई सही चीज बोल रहा होता है लेकिन हम लोग सुनने को तैयार नहीं होते, और कई बार हम लोग ऐसी ऐसी चीजें सुन के खुद को परेशान कर लेते हैं जिनको सुनने की कोई जरूरत नहीं होती। वो बैलेंस मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। सही और गलत के बीच का फैसला करो, और अपने आप को जो है कभी भी, ये आज इतने समय के बाद मुझे बात समझ में आई है, जब लोग कहते थे कि नेवर स्टॉप लर्निंग, मुझे लगता था नेवर स्टॉप लर्निंग लाइक व्हाट? But the fact is that, yeah, never stop learning. Always keep your mind open to suggestions, to what life teaches you.
ऑब्जर्वेशन कभी भी आपकी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन आपकी हमेशा अपने ऑप्टिमम पे काम करनी चाहिए। अगर आपको एक्टर बनना है, अच्छे लोगों का काम देखो, अच्छे लोगों का काम पढ़ो, मतलब जो राइटर्स हैं, ये सारी की सारी चीजें करनी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे परेशानी क्या है ना कि सारे के सारे रुक गया। Varun, I've lost you. Will you just uh, can you hear me? या आई कैन हियर यू। सो मैं यही बोल रहा हूँ कि एवरीबडी वॉचेज एवरीथिंग। हॉलीवुड की सारी आपने वेब सीरीज देखी हुई है, सब फिल्में देखी है, सब कुछ किया है। उसमें से काम नहीं चलता। यू नीड टू रीड ऑल्सो, यू नीड टू, एंड ये समझने की जरूरत है कि कुछ एक सीरीज या कुछ एक आप फिल्में देखते हैं परफॉर्मेंस के लिए, कुछ एक फिल्में देखते हैं स्टोरी के लिए। सो आपको ये भी डिसाइफर करना पड़ेगा कि आप जो है आप एंटरटेनमेंट के लिए चीजें देख रहे हैं या आप परफॉर्मेंस के लिए या किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए देख रहे हैं। कुछ एक फिल्में होती है जो कि सिर्फ डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। सो यू नीड टू डिसाइफर थिंग्स बेटर। और इसी चीज के लिए बैलेंस इज that one word that I can say is the most important word for any newcomer. Very well said. Equanimity is very, very important to be able to maintain your balance. Yeah. Absolutely. So, Varun, very quickly to sum it all up, you have given great insights into various aspects of your life and how you took it forward, etc. To sum it up, what would be those 5 key takeaways, that you would like to share with the viewers and, talk about them? Those, I lost you in between. Those 5 what? I'm saying to sum it up, I just want to know, what are those 5 key takeaways that you would like to share with the viewers? Can I just add you again? Just give me half a second. Can I just add you again? Yeah, sure. Actually, Instagram is showing me that there are 23 seconds remaining. Why don't you just give me your last word? Stay home, stay happy. There is so much to say, but